गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं आप लोगों के लिए एक चैप्टर लेकर आई हूँ, दैट इज़ इलेक्ट्रिक कैपेसिटर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दिस इज़ द सेकंड चैप्टर एंड इन विच वी विल स्टडी अबाउट द नेचर ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स. Conductors are the material through which electric current can be conducted, while insulators the electric current cannot be conducted. In capacitors, we have some concept about the conductors. Capacitors means the capacity to store charge. How much charge can be stored in them? Practically, conductors store a large amount of charge as they are conductors, but because of their conductivity they cannot sustain charge in them for long time because charge is conducted from them. While in insulators a small amount of charge can be stored, but that can be sustained because it cannot conduct the charge. So we have a contradiction between the two material, conductor and insulator. In case of the insulator, if we want to use them, large amount of charge cannot be stored, but conductor cannot store charge. So capacitor is a chapter in which we will make some capacitors by using a combination of conductor and insulator so that more charge can be stored and obviously that should be sustained also. So now we will start from the topic behavior of conductors in electric field. So here in this case you can see the behavior of conductor in electric field. If any conductor is placed in any electric field, which type of behavior it will show? Some points are there. First one, net electric field is zero inside the conductor. Inside any conductor, the net electric field is always zero. That means if you have given any conductor object, solid or hollow, अगर हम solid ले रहे हैं तो इस केस में if you have any solid conductor, then inside that solid conductor the electric field will be always zero. जितना भी चार्ज अगर आप उस कंडक्टर को प्रोवाइड करेंगे, दैट टोटल चार्ज इज ऑलवेज डिसाइड ओनली ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर. द चार्ज विल नॉट गो इनसाइड द कंडक्टर. सेकेंड पॉइंट, जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ द चार्ज्ड कंडक्टर electric field is normal to the surface. That means if you have given a conductor, this is a conductor for you, some charge is given to it. First condition, the charge inside it is always zero and whatever charge is residing, that is only on its surface. And if you want to determine the electric field near to it, the electric field is always perpendicular to its surface at every point, just near the conductor. This is our second point. Third point for it is the electric potential is constant inside and on the surface. If you have given any conductor, just I have made a spherical conductor and some charge is given to this conductor. And normally I told you earlier that when we are talking about the charge and no sign, that means it is always the positive charge. So if it is a conductor, the total charge on it is positive. And if the charge is positive, then inside it the electric field is zero. But what about the potential? Inside it, what about the potential? We know that electric field is equal to minus dV by dr. This is a formula which we studied earlier. Now here, if you will see the formula which we are using, E is equal to dV by dr. This is the basic formula. But inside the conductor, electric field is zero. This I told you in the first point कि inside any conductor the electric field is always zero. तो इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा. तो इसका मतलब है कि दिस dV अपॉन dr इज इक्वल टू ज़ीरो. अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, मैंने एक स्टेप मिस किया है, इफ़ यू विल सी दैट मीन्स dV इज़ इक्वल टू ज़ीरो. अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो V विल बी इज इक्वल टू कांस्टेंट. तो आपको क्या मिलता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ऑलवेज कांस्टेंट. तो नाउ इन दिस केस कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो ज़ीरो होता है
लेकिन पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट होता है, पोटेंशियल कभी भी उसके अंदर ज़ीरो नहीं होता है। नाउ अगर किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है तो उसको हम कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं? दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूज़फुल फॉर अस, जिसको हम कहते हैं दिस इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इज़ अ फिनोमिना जहाँ पर जो मैं आप लोगों को यहाँ पर प्रॉपर्टी बता रही थी कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ज़ीरो होता है। तो अगर हम किसी भी कंडक्टर के अंदर एक केविटी ड्रॉ कर देते हैं, एक केविटी बना देते हैं, केविटी मीन्स एक गैप बना देते हैं, एक होल बना देते हैं अंदर, दैट इज़ क्लोज्ड फ्रॉम ऑल द साइड्स, तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर हमेशा ज़ीरो रहेगा। दैट मीन्स देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल चार्ज और एक्सटर्नल फील्ड इनसाइड द कैविटी, एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। और इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग डेफिनेशन इज द फिनोमिना ऑफ मेकिंग a region free from any electric field is called electrostatic shielding। अगर हम चाहते हैं कि कोई ऐसा सिस्टम या कोई ऐसी जगह हमें मिले जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाए या जहाँ पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई असर ना हो, तो इस रीजन को हम कहते हैं दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, एंड दिस कैन बी डन ऑलवेज बाय मेकिंग अ कैविटी इनसाइड अ कंडक्टर। इसके कुछ यूजेस हम करते हैं, कुछ एग्जांपल्स, जैसे जो हमारा थंडर स्टॉर्म होता है, इन केस ऑफ द थंडर स्टॉर्म इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ वेरी हाई। जो हमारे आसमान में बिजली कड़कती है या बिजली चमकती है तो वहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो होता है करीब 25 लाख वोल्ट, और इतना वोल्टेज इज़ सफिशिएंट टू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। तो ये बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है। तो इससे बचाने के लिए, जैसे मान लीजिए अगर आप कहीं जा रहे हैं और भयंकर बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, तो आप अपने आप को उसमें से कैसे प्रिवेंट करेंगे? द सेफेस्ट वे इज़ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी इज़ टू रिमेन इनसाइड द व्हीकल। आप अगर किसी भी गाड़ी में हैं या कोई भी गाड़ी आपके आसपास है तो उसमें जा कर के सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर दीजिए, बिकॉज नॉर्मली द व्हीकल्स आर मेड अप ऑफ कंडक्टर्स एंड यू आर इनसाइड द कैविटी ऑफ द कंडक्टर। तो अगर बिजली गिरेगी भी तो आपके ऊपर कभी नहीं गिरेगी, वो केवल सरफेस से होकर ग्राउंड में चली जाती है। सो दैट इज़ द सेफेस्ट वे। ऐसे ही जो हमारे डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे हमारे कंप्यूटर के अंदर के कुछ पार्ट्स होते हैं या जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं, उनमें कुछ सिस्टम हमारे सेंसिटिव होते हैं, कुछ हमारे नॉर्मल होते हैं। तो जितने भी सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं उन सबको हमें प्रोटेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का ही इस्तेमाल करते हैं। उस कंपोनेंट को या उस एरिया को जहाँ पर जो ज़्यादा सेंसिटिव है उसको हम एक अंदर कैविटी के अंदर, इलेक्ट्रिक कैविटी के अंदर बंद कर देते हैं कि अगर चारों तरफ से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें आएगा तो वहाँ पर आपका उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, एंड द ऑब्जेक्ट और द कंपोनेंट्स रिमेन सेफ। नेक्स्ट वन, एक हमारे पास नाउ हम इतनी देर से कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, व्हाट इज़ कैपेसिटी एंड व्हाट आर कैपेसिटर्स। तो दैट इज़ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। अगर आपके पास कोई एक कंडक्टर है, यहाँ पर हम एक छोटा सा कंडक्टर ड्रॉ कर लेते हैं, एक कोई कंडक्टर हमारे पास है, इस कंडक्टर को आप बाय एनी सप्लाई चार्ज प्रोवाइड कर रहे हो, आप इसको चार्ज सप्लाई कर रहे हो, तो क्या होगा, इसमें चार्ज आता चला जाएगा और साथ ही साथ इस पर एक पोटेंशियल भी डेवलप होने लगेगा। तो डेफिनेटली आप जितना ज़्यादा चार्ज इसको प्रोवाइड करोगे उतना ज़्यादा पोटेंशियल इस पर डेवलप होगा, अप टू द लिमिट ऑफ सैचुरेशन। हर चीज़ की एक लिमिट होती है, तो यहाँ पर भी वट एवर वी विल डील दैट विल बी ओनली अंडर द कंडीशन ऑफ द सैचुरेशन, कि जितना मैक्सिमम पोटेंशियल ये बियर कर सकता है उतना ही चार्ज इसमें आएगा। सप्लाई करने की बात है तो वी कैन सप्लाई इनफाइनाइट चार्ज, हम जितना चाहें उतना सप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये बियर कितना कर सकता है दैट डिपेंड्स ओनली ऑन इट्स पोटेंशियल। तो यहाँ पर एक मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास आ जाता है कि व्हेन वी आर डीलिंग विथ कंडक्टर, तो यहाँ पर जो भी लिमिट होती है दैट लिमिट इज़ ऑलवेज इन द पोटेंशियल, नॉट इन चार्ज और नॉट इन कैपेसिटी। कैपेसिटी इज़ कांस्टेंट, लेकिन बियरिंग लिमिट इज़ ऑलवेज डिफाइंड बाय द पोटेंशियल। तो हमारे पास क्या होता है, अप टू
द सेचुरेशन लिमिट की अगर हम बात करते हैं तो Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करने के लिए हम एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाते हैं, तो यहाँ पर जो हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है दैट इज़ इक्वल टू C। तो ये हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है दैट इज़ इक्वल टू C, एंड दिस इज़ कॉल्ड एज द कैपेसिटेंस। द वैल्यू ऑफ C इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो हम फार्मूले की बात कर रहे हैं ये पूरा फार्मूला हमारा ओनली अंडर द सैचुरेशन लिमिट की बात हो रही है, नॉट बियॉन्ड द सैचुरेशन। Now, what is the value of C? The SI unit of this capacitor is farad, represented by capital F. तो जो हमारी SI unit farad है, this is one of the very large units, and this is named after the scientist Michael Faraday. माइकल फेराडे एक इकलौते ऐसे फिज़िक्स के साइंटिस्ट हैं जिनके नाम पर दो चीज़ों की यूनिट रखी गई है। वन इज़ यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस दैट इज़ फेराड। सेकंड, आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज़ फेराडे। तो दो फिजिकल क्वांटिटीज़ की यूनिट इनके नाम पर रखी गई हैं, बाकी हर साइंटिस्ट के नाम पर एक सिंगल यूनिट ही है। तो फेराड इज़ प्रैक्टिकली अ वेरी लार्ज यूनिट। अगर हम इसको लेते हैं तो नॉर्मली जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनकी यूनिट हमेशा स्मॉलर होती है, मिली फेराड, माइक्रो फेराड या पिको फेराड। सो रिलेशंस यू नो, आई हैव स्किप्ड सम ऑफ देम, दैट इज़ द नैनो फेराड etc. we can have a number of units, and what is exactly the meaning of 1 farad, कितनी यूनिट होती है वो हम इसके आगे देखेंगे। Now we have one derivation, that is the capacitance of an isolated spherical capacitor। यहाँ पर हम टर्म यूज़ कर रहे हैं isolated। isolated का मीनिंग होता है that is not in contact with anything, किसी के कॉन्टैक्ट में इसको नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स दिस स्फेरिकल कंडक्टर, क्योंकि हम कंडक्टर की बात करें तो दिस इज़ अगेन अ कंडक्टर, दिस स्फेरिकल कंडक्टर हैव अ रेडियस कैपिटल R एंड इट इज़ वी हैव गिवन अ चार्ज Q टू इट। Q चार्ज हमने इसको दिया हुआ है, एंड दिस इज़ कैप्ड इन स्पेस। स्पेस मीन्स इट इज़ कैप्ड इन वैक्यूम, कहीं कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। जितना चार्ज हमने इसको दिया है दिस विल ऑलवेज डिसाइड ऑन इट्स सरफेस ओनली। तो किसी भी डेरिवेशन से पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। सो दैट आई हैव रिटन हियर, कंसीडर अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस R, चार्ज Q इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द स्फेयर। तो जो भी होगा हमेशा ध्यान रखना, डेरिवेशंस आर ऑलवेज फॉर द आइडियल कंडीशंस, द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द स्फेयर इज ऑलवेज यूनिफॉर्म, दैट वी हैव टेकन। नाउ द पोटेंशियल डेवलप्ड ऑन द सरफेस। अब इसकी सरफेस पर, इस स्फेयर की सरफेस पे कितना पोटेंशियल डेवलप होगा, अकॉर्डिंग टू फार्मूला दिस यू हैव स्टडीड अर्लियर, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। बट फ्रॉम द प्रीवियस फार्मूला मैंने बताया था Q इज इक्वल टू CV होता है, तो यहाँ से C इज इक्वल टू Q अपॉन V हो जाएगा, एंड दिस Q अपॉन V की वैल्यू यहाँ से हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, दिस Q and this Q will be cancelled out, and this denominator section will reach to the numerator, and we will get this C is equal to 4 pi epsilon naught R. This is the value of capacitance of a spherical capacitor. अब हमें ये वैल्यू कितनी होती है? If you want to determine the capacitance of earth, if you are determine the capacitance of earth, तो क्या हो जाएगा हमारा, C is equal to 4 pi epsilon naught R, we will write it, फार्मूला तो यही है हमारा 4 pi epsilon naught R। 4 pi epsilon naught की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू ये वैल्यू हमने रख दी। R की वैल्यू, रेडियस ऑफ अर्थ हम लोगों को पता है, आपने 11th में भी पढ़ा था, दैट इज़ 6400 किलोमीटर्स, और यू कैन राइट इन टर्म्स ऑफ मीटर्स, 1000 से और मल्टीप्लाई कर दोगे। सो व्हाट इज़ देयर, 1 2 3 4 5 6 जीरोज़ यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, तो व्हाट विल यू गेट, दैट इज़ 6.4 अपॉन 9 इंटू 10 टू द पावर 3, यू कैन सी इट। ठीक है, 3 zeros 4 5 zeros तो डायरेक्ट यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। वन मोर डिजिट आई हैव टेकन एज डेसिमल, 6.4 अपॉन 9 इंटू 10 टू द पावर 3, और यू कैन राइट इट एज दिस इज 6.4 अपॉन 9 इंटू 10 टू द पावर -3, और दिस कैन बी रिटन एज, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो व्हाट विल यू गेट, 0.711
into 10 की पावर -3 farad, or we can write this is approximately it is equal to 0.711 millifarad. So this is the capacity of earth, 0.711 millifarad. That means you can understand not even 1 farad. इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, बट स्टिल द कैपेसिटी ऑफ अर्थ इज़ टेकन एज इनफाइनाइट. ये हम सब लोग जानते हैं क्योंकि जितना भी चार्ज आता है दैट ऑलवेज गो टू ग्राउंड. एंड दिस स्टेटमेंट शोज दैट द फैरड इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट यूनिट. अर्थ की हमारी कैपेसिटी अगर 1 मिली फैरड भी नहीं है, 1 मिली फैरड से भी कम है, सो दैट मीन्स जो भी कंपोनेंट हम अपने इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज में यूज़ करते हैं उनकी कैपेसिटी हमेशा माइक्रोफैरड या पिकोफैरड में ही होती है. फैरड इज़ वेरी लार्ज यूनिट ऑफ द कैपेसिटेंस. दिस इज़ फर्स्ट टॉपिक और one lecture of the capacitance. Next I will send you next time. Thank you very much.